أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده نصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. اللهم لك الحمد والشكر. اللهم اللهم لك الحمد والشكر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني من المتوابين واجعلنا من المطهرين. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. آج کا ہمارا بیان کیا ہے؟ انشاءاللہ عید کے دن ہم کیا کیا کریں گے، یعنی کیسا کریں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. باب ہے اللہ آکل یوم الفطر قبل ان تخرج. حدیث ہے 528 ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرة وهي رواه عنه قال يأكلين رواہ بخاری. یعنی وہ بخاری صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھائے، یعنی کچھ کھانا، یعنی جو کچھ بھی کھانا چاہیے. کیا کھانا ہے؟ اس میں کیا، یہ حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرماتے، نماز کے لیے نہ جاتے. کیا کرتے؟ جب تک چند کھجور، یعنی کھجور نہ کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک نماز کو نہیں جاتے، عید کی نماز. اور انہیں سے ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجور کھاتے. یعنی طاق عدد میں کھجور کھانا کا مطلب کیا ہے؟ 3، 5، 7 یا اس سے بھی زیادہ. ایسا طاق عدد میں کھجوریں کھانا، عید کے ٹائم پہ جانا، یعنی میٹھی چیز کھا کر جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس حدیث میں ہمارا اور ایک بات کیا پتہ چلی، یعنی جب تک وہ نہیں جاتے نماز کے لیے، یعنی صبح ہمیشہ ایک مہینہ پورا ہمیشہ روزے رہتے ہیں. یہ جب عید کو جب جاتی ہیں، جب طاق عدد میں کھجوریں کھانا یہ سنت کے مطابق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے، ہم بھی ایسا کرنا چاہیے. اس حدیث سے یہ فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے میٹھی چیزیں تناول کرنا، یعنی میٹھی چیزیں تناول کرنا مستحب ہے. یعنی مستحب ہے کہتے جو بھی ایسے میٹھے چیزیں کھانا مستحب ہے. شربت نوش کرنا بھی صحیح ہے. یعنی شربت، یعنی اگر دودھ کا شربت ایسا ہے جو بھی، یعنی آج کے ماحول میں کیا سیمیاں ایسا بنا دی، وہ بھی ایسا کھانا، ایسا وہ بھی میٹھی چیز میں ہی آ جاتی. اگر گھر میں میسر نہ آئے تو راستے میں یا عیدگاہ پہنچ کر کھا پی لے، اس کا ترک مکروہ ہے. بہتر ہے کہ طاق عدد کھجوروں کو استعمال کیا جائے. یعنی رستے میں ایسا کچھ نہ کچھ کھانا، یعنی عیدگاہ جا کر کھانا، اس سے یہ بہتر ہے کہ طاق عدد کھجور جب کھا کر جاتے ہیں، یہ اچھا ہے. ایسا کھا کر جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے دیکھو الحمدللہ عید الفطر ہے. یہ عید الفطر کا کیا ہے؟ عید رمضان کا خطبہ، یعنی ہمیں رمضان کا خطبہ ایسا بولتے ہیں، عید ایسا بولتے ہیں. فطر کا تو یہ عید الفطر رمضان کا خطبہ، اور عید الاضحیٰ کے تو یہ بقرعید کی عید بولتے ہیں، اسے کہا جاتا. اور اس حدیث سے ہمارا اور ایک یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ حضرت، جی پلیز آپ کا مائک بند کر لیں، جس کا بھی مائک کھلا ہے پلیز بند کرنے کی کوشش کریں. جی
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हजरत हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हा से यानी ईदगाह में मंबर यानी मंबर मंबर के बगैर जाना, यानी ईदगाह में ऐसा मंबर नहीं होता। यानी आप अब ईद अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये काबतुल्लाह क्या है, हर एक का किबला है, हर मुल्क का किबला है। हमें जिस तरफ भी हो इसके तरफ हमें किबला कर कर हमें नमाज पढ़ सकते हैं। जब ईद की नमाज कहाँ पढ़ी जाती, ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में पढ़ी जाती। फिर भी आम तौर पर यानी क्या करते हैं, बहुत अब लोगों ज्यादा रहते हैं, गाँव के पूरे लोग आ जाते हैं नमाज को, वो वक्त मस्जिद में जगह नहीं होती। इसी तरह ईदगाह में भी जा सकते हैं, यानी बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा जा सकते हैं। वहाँ ये ज़रूरत नहीं कि हम नंबर लगाओ, ये करो। क्या सुथरा रखना यही काफ़ी है, सुथरा रखना यही काफ़ी है। इसीलिए हम ऐसा सुथरा रखना क्या है, जो कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी ऐसा रख सकते हैं। अगर जब मैदान में हो, अब है तो काबतुल्लाह के सामने है, काबतुल्लाह के सामने कोई रखे तो नहीं रखे तो भी चल जाता है। अगर जो हमें मैदान में नमाज़ पढ़ती हैं, जब क्या करना, इमाम के सामने बस सुथरा रखना चाहिए, यानी जो भी लकड़ी, यानी जो भी चीज़ थोड़ी ऊँची से रखना चाहिए। अगर मुक्तदी के सामने नहीं रखे तो भी परवाह नहीं। ये क्या मतलब, अब ये पूरों के सामने क्या रखे तो नहीं रखे तो चलता। बस इमाम के सामने सुथरा रखना चाहिए, जो भी लकड़ी हो, जो भी लकड़ी पे जड़ा कपड़ा डालकर हो, यानी थोड़ा सा ऊंचा चीज कुछ ना कुछ रखना चाहिए। इस हदीस अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दोनों ईद का तशरीफ ले जाते तो पहले जो काम करते वो नमाज नमाज होती। यानी जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उनके बाद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में भी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा जो भी नमाज ये करते ईद ईद में जाते थी, पहले क्या करती, तकबीर तहरीमा होने के बाद और ईद की तकबीर ईद की तकबीर खत्म होने के बाद नमाज नमाज अदा करती, नमाज के बाद खुतबा पढ़ती। जुम्मा के दिन इसका मुख्तलिफ है, क्या है, पहले खुतबा है, बाद में ईद की नमाज है, जुम्मा की नमाज है, सॉरी। ईद में क्या है, पहले नमाज है, बाद में खुतबा है, इसी तरह। और इसमें क्या हुआ, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सहाबा भी ऐसे करते थे, ऐसा ही फरमाते थे। और उनके बाद में और एक सहाबी आए, उन्होंने क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु फरागत फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने खड़े होते, यानी जब ईद की नमाज क्या होती है, ईद का नमाज यानी ईद उल अज़हा, जी सॉरी, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह तशरीफ ले जाते तो पहले जो काम करते वो नमाज होती, पहले जो काम क्या है वो नमाज होती। उससे फरागत होगा फरागत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने खड़े होते, लोगों से लोगों अपने सफ़ों में बैठे रहते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ खत्म होने के फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो आते और सहाबा और पूरे तमाम जमात यानी बैठी रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नसीहत और तलकीन फरमाते और अच्छी बातें का हुक्म देते। उसमें क्या है, ये भी खुतबा भी हो सकता है, यानी ऐसा भी कर सकते हैं, यानी जो भी तलकीन करना चाहती हैं, जो भी नसीहत करना चाहती हैं लोगों को, ऐसा वो वक़्त भी, ईद के वक़्त भी ऐसा कर सकते हैं। फिर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई लश्कर भेजना चाहते तो इसे भी तैयार कर लेते। यानी ईद के मौके पर, क्योंकि वो मजमा ऐसा रहता है, यानी पूरे के पूरे लोग रहते हैं, हम बात यानी आसानी से पहुँच जाता है। अब देखो, अब आम तौर पर एक-एक बात बताना का तो ऐसा ऐसा भी देरी होता है। इसी इसी से ये फ़ायदा मालूम हुआ कि यानी पूरे के पूरे लोग वहाँ रहते हैं, ऐसी तैयारियाँ भी करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। और ऐसा ही करने टाइम पे उनमें से एक साहबी क्या है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद भी लोग ऐसा ही करते थे, यानी ऐसे ही करते थे। यहाँ तक कि मैं मरवान रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ ईद उल अज़हा और ईद उल फितर में गया।
गया, वो उस वक़्त मदीने के हाकिम थे। ये क्या है, मरवान कर कर वो एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने मदीने के हाकिम थे। हाकिम थे जब कौन गए, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हा उनके पास ईद में तशरीफ़ ले गए। ले गए तो क्या हुआ, जब मैं ईदगाह पहुँचा तो वहाँ एक मंबर वहाँ रखा हुआ था। हाँ, क्या है, एक मंबर रखे क मंबर का मतलब क्या है, वो मंबर पर चढ़कर खुतबा देने से सबको भी वाज़ेह होते है इमाम। इमाम जहाँ जिस जगह पर खड़े को ही यहाँ खुतबा देने से किसी को नजर नहीं आते शायद, नजर नहीं आते, इसीलिए खड़े कर वो मंबर पर खड़ने से सबके भी नजर आते। इसी इसी तरह हम ये बात भी मालूम होता कि जब टीचर जो भी बयान करती हैं, जो भी ये करती हैं, हमें क्या, हमें नीचे बैठते हैं, क्योंकि नीचे बैठना यानी टीचर के सामने होना चाहिए। जो भी टीचर कहती हैं हमसे, हमको तवज्जो देने के लिए टीचर के सामने होना चाहिए और उनका चेहरा भी हम सबको दिखना चाहिए। इसी तरह पहुँचते, तो मेंबर पर मेंबर पर वहाँ रखा था। तो कसीर बिन सलात ने तैयार किया था। उन्हें एक मेंबर तैयार कर कर वहाँ रखे। मरवान रज़ियल्लाहु अन्हा अचानक चाहे के नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने से पहले नमाज पढ़ने से पहले उस पर चढ़े। यानी पहले क्या है, ईद की नमाज क्या है, पहले नमाज पढ़ना, बाद में खुतबा करना, बाद में खुतबा देना। इन्हों क्या करे, पहले नमाज नहीं पढ़े और मेंबर पर चढ़ गए। किस लिए चढ़े, खुतबा देने के लिए। तो मैंने उसका कपड़ा पकड़कर खींचा। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किए, तुम्हें क्यों मेंबर पर चढ़ती हैं, पहले पहले नमाज अदा करो, बाद में खुतबा दो कर कर। इसी तरह उनका जो भी उनका कपड़ा रहता है पकड़ कर खींचे उनको, उतर जाओ, तुम्हें खुतबा पहले मत दो। लेकिन लेकिन उसने मुझे झटका दिया, यानी उन्होंने क्या करे, मरवान रज़ियल्लाहु अन्हु ने झटका दिया उनको, तुम्हें छोड़ दो मुझे, ऐसा करके, और मेंबर पर चढ़ गया। तो उन्होंने नमाज से पहले खुतबा दिया। मैंने मैंने उससे कहा, अल्लाह की कसम, तुम लोगों ने सुन्नत की पैरवी को बदल दिया है। यानी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया वो दिन, वो वक़्त, यानी अल्लाह की कसम, तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बदला दिया, तुम्हें ऐसा क्यों करते हैं? सुन्नत जैसी है ऐसी फॉलो होना चाहिए, क्यों ऐसा करते कर कर उन्हा से कहते हैं। उसने कहा, जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्हें बोलती हैं, अये अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हा, वो ये बात जाती रही कि जो तुम जानते हो, मैंने जो आबा कहा, आप कहा, अल्लाह की कसम, जो मैं जानता हूँ वो उससे कहीं बेहतर है। यानी उन्होंने क्या बोले, तुम ये नहीं जानते कि जो मैं जानता हूँ, यानी अल्लाह की कसम, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते कर कर उनको जवाब दी। क्या जवाब दी? जानता हूँ। इस पर मरवान रज़ियल्लाहु अन्हा, गोया गोया हुआ बात दरअसल ये है कि लोग हमारा खुतबे के लिए नमाज के बाद नहीं बैठते, लिहाजा मैंने खुतबे को नमाज से पहले कर दिया। उनका डर है था कि उनका खुतबा कोई भी नहीं सुनते। जब नमाज, ईद की नमाज आती, फौरन शायद वो लोगों को अपने ये भी होगा कि जो कोई मशगूल होंगे, जो कोई काम होगा, जो कोई किसी को अपना काम होगा, इसीलिए बहुत से लोग नहीं बढ़ते खुतबे के लिए। इसलिए वो डर से लोग क्या करते हैं, पहले मेरा खुतबा तुम्हें सुनो, बाद में मैं नमाज पढ़ाऊँगा कर कर, ऐसा उन्होंने सुन्नत को बदल दिए। ऐसा नहीं करना। इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। इसीलिए उन्होंने अल्लाह की कसम खाकर ये बोलती हैं कि मेरा खुतबा कौन नहीं सुनती, इसीलिए मैं खुतबे को मैं बदला कर नमाज को बदला कर खुतबा पहले दिन, ऐसा ऐसा करे उन्होंने। ऐसा नहीं करना। वही अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हा उनको कपड़ा पकड़ कर भी उनको खींचने लगे, ऐसा सुन्नत की बात बताने भी लगे। इससे हमें क्या बात पता चलता है? इससे हमें ये बात पता चलता कि व आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, क्या है? व आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अल्लाह ताला की इताअत करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, यही हमारे लिए काफ़ी है। यही हमारे लिए काफ़ी है। इस हदीस से ये मालूम होता है कि हज़रत मरवान रज़ियल्लाहु अन्हा ये तब्दीली अपने इज इजता इज्तदा से की थी।
یہ اپنی مرضی سے کیے تھے، इनको अपनी मर्जी से किए थे, ये सुन्नत के बराबर नहीं, क्योंकि मेरा खुतबा और आपको सुनना करो, ये देखो एक तरफ से जुल्म भी होगा, ये एक तरफ से हमारे बातों में आम लफ्ज़ में देखे तो जुल्म भी होगा। उन्हें सुनना नहीं चाहती, तुम्हें क्यों ना पकड़ के सुनाती? जब वो सुनना चाहती हैं उनको सुनाना चाहिए। जब वो सुनना चाहती हैं तो उनका दिल मुतमईन होता है कि हमारी बात को तवज्जो करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते गए? पहले तकबीर हो जाने के बाद नमाज़ कायम करते गए, नमाज़ के बाद खुतबा देते गए। यही हमारा अभी तक चल का आता है। ऐसा नहीं मेरा खुतबा सुनना, लोग ने वो जाना नहीं बाहर मेरे खुतबे से कर कर ऐसा करें, ऐसा सुन्नत के ये हुआ हो, इसीलिए साहबा उनको डांटी हैं ऐसा। हमारे में भी क्या है, जब भी हमको हक की बात मालूम हुआ आती, हमें हक की पैरवी करना चाहिए, हमें गुमराही से बाज आना चाहिए, ऐसा नहीं करना। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके बताए वही हमें करना चाहिए। जो नकस के मुकाबले में हुआ था, नाकस यानी जो भी कमी करे उन्होंने ऐसा बनाए, इस पर काबिले अमल ना थी। इस पे काबिले अमल क्या? या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करे। चुनांचे हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु ने इसका नोटिस लिया नोटिस लिया। इससे ये भी मालूम हुआ कि अगर हुक्मरान किसी बेहतर काम पर मुवाफक ना करें तो खिलाफ वाली काम को अमल में लाना जायज है। यानी ऐसा करना, यानी कहाँ तक बेहतर है, यानी हमें सुन्नत को फॉलो करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हमें फॉलो करना चाहिए। और एक हदीस से हमें क्या मालूम होता है, नमाज ईद के बाद खुतबा, यानी नमाज के ईद के बाद खुतबा, इसमें क्या, ये हदीस से क्या मालूम होता है? हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने उन्होंने फरमाया कि मैंने ईद की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु और उमर रदियल्लाहु अन्हु और उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के साथ पढ़ी। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़े और बाद भी 3 सहाबा के साथ भी उन्हें एक के बाद ऐसे नमाज पढ़े। ये सब क्या करते थे? ये सब हज़रात खुतबे से पहले नमाज़ ईद पढ़ते थे। उन्होंने सुन्नत को फ़ॉलो करते थे। खुतबे से पहले नमाज़ पढ़ते थे, ये क्योंकि ये सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसीलिए वो यही फ़ॉलो करते थे। बस ये साहबा एक है इमरान इमरान कहती हूँ, सॉरी, मरवान रज़ियल्लाहु अन्हु है, इन्हों ही थोड़ा इख्तिलाफ़ करी, क्योंकि मेरा खुतबा सुनना लोगों कर पहले उन्होंने खुतबा दी, बाद में ये नमाज़ पढ़ी। और एक बात क्या है, ईद के लिए पैदल या सवार होकर जाना जाना और खुतबे से पहले नमाज अदा करना। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु और हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि न ईद उल फितर की अजान होती है और न ईद उल अजहा की अजान होती है। ये दो नमाजों की अजान नहीं होती, क्योंकि अजान नहीं होती खुतबा से शुरू होती। और एक हमको अब मर्दों के बारे में मालूम है, इंशाल्लाह औरतों के लिए क्या हुक्म है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये हम सबको मालूम होना चाहिए कि हम क्या करती हैं, हम क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या हुक्म है वो मालूम होना चाहिए। सही क्या गलत क्या नहीं मालूम, पकड़ पकड़ जो कौन भी जो भी बताते हैं, ना इस पर अमल करना ना उस पर अमल करना, इस ऐसे होकर बीच में खड़े होते हैं रहते हैं, वो भी अमल करती हैं ये भी अमल करती हैं, वो अमल काबुल होता अल्लाह को या नहीं पता नहीं। इसीलिए सही तरीका हमें जानना चाहिए, सही सही तरीके से हमें करे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमल भी कबूल होते हैं। ये मिसाल के तौर पर कैसा, एक रास्ता मालूम है, जहाँ वो जाना चाहता है उसको रास्ता मालूम है, एक दूसरा ये है कि उसे रास्ता मालूम नहीं। वो दो इंसान बराबर अपने ठिकाने को पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। रास्ता मालूम है, वो जल्दी से पहुंच सकता है अपने रास्ते को। अगर तक किसी को रास्ता मालूम नहीं, वो क्या पहुंच सकता? वो नहीं पहुंच सकता। इसी तरह हमें मालूम करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या-क्या बताए, वो भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। और बाप है हैज़ा हैज़ा का रोज़ा छोड़ना, यानी ये है इसमें क्या-क्या हमें मालूम होगा देखेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा और ईद उल फितर में निकले।
ईद उल अजहा और ईद उल फितर क्या, अब रमजान का खुतबा और बकरीद का खुतबा, ये दो खुतबे में निकले, यानी मुख्तलिफ, यानी वो वक्त में वो खुतबा, ये वक्त में ये खुतबा के लिए निकले। निकलने के बाद क्या हुआ, और ईदगाह में औरतों की जमात पर गुजरे, यानी जब उनका नमाज खुतबा खुतबा खत्म हुआ और नमाज खत्म हुआ, नमाज खत्म होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, उन औरतों की तरफ आ गए, क्योंकि उनको भी समझाने के लिए, शायद जो भी औरतों से मुखातिब होकर उनको बात करने के लिए आकर रहेंगे, हमें ये हदीस से देखेंगे क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को फरमाए, औरतों की जमात पर गुजरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, औरतों खैरात करो, औरतों खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी अक्सरियत को दोज़ख में देखा है। औरतें तुम खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि औरतों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोज़ख में देखा है, इसीलिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करो। बोले, वो बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों औरतें ज़्यादा जहन्नम में ही? उन्होंने सवाल किए, कौन? औरतों ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, तुम लान अ, लान तुम लान-तान बहुत करती हो। लान-तान क्या? थोड़ा छोटी-छोटी बात को ब औरत करने की जल्दी से ये हो आती, यानी गुस्से में आ जाती उन्हों। यानी लान-तान करने का मतलब क्या है? बुरा भला कहना, यानी उनको बुरा भला कहना, उन पर लान-तान करना, ऐसा बहुत करती, इसीलिए। और एक क्या है? और खाविंद की नाशुक्री करना। देखो, खाविंद की नाशुक्री करना, आपके आपके ज़माने के खा जबकि ज़माने के खाविंद माशाअल्लाह, जबकि ज़माने में के शोहरा बीवियाँ से इतना ये रहे कि उनको इतना महर देकर, उनका इतना ये सोना, पैसा सब देकर देकर उनको निकाह करते गए, और निकाह करने के करने के बाद में क्या होता, उनसे इतना नरमी से पेश आते रहे कि वो औरतों के साथ, अस्तगफुरुल्लाह, प्लीज़ अपना माइक बंद कर लो, प्लीज़। कितनी बार मैं बंद करती हूँ, खोलती ही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, और अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। ये पहले के शौहरों की बात होती है इसमें, आपका भी मैं बताऊँगी इंशाअल्लाह। पहले के शौहर क्या, औरत अगर चाहे उसे तलाक हो, अगर चाहे उस मर्द जाहिल हो, उसे देख ना पाए, उसे सताए, उसे करे, उसे क्या, जितना भी वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए काफ़ी हो, उतना सुन्ना, उतना जहेज़ उसे देकर, अल्लाह ताला उसे उतना मेहर देकर, सॉरी जहेज़ कहती हूँ, उतना मेहर देकर उसे अपने निखें में लेते थी। निखे में लेती रही, इसीलिए यानी जब भी, यानी उनको उनको ये हक वैसे औरतों को ये हक नहीं बनता कि अपने शौहरों पर लान तान करे। फिर भी ये ऐसी बात होती कि जितना भी शौहर करो बीवी के लिए, अगर चाहे एक दफा वो शौहर से गलती हो जाए, क्या कहती, मैं तुम्हारे तरफ से कोई भलाई देखी नहीं, तुम्हारे तरफ से कोई चीज अच्छी चीज नहीं देखी, तुम्हें कुछ भी मेरे लिए ऐसा नहीं कह रहे, पर को ये एक बात दिल से ऐसा कह देती कि वो इंसान का दिल टूट जाए, ऐसा नहीं कहना। अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी हो जब भी हो, हमें ये करना कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ये शोहर को मुझे अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। कर कर ऐसा नरमी से पेश आए, तो इंशाल्लाह वो भी शायद उनमें भी तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। कोसा शौहर भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा के जैसा नहीं हो सकती। फिर भी कोई सी औरत ऐसी नहीं होती कि साहबियात की जैसी नहीं हो सकती। हमको उनके नमूने को हमें देखकर हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी भलाई है। अगर तो हम ऐसे ही हम अपनी ज़िद व हठधर्मी में रह गए, तो नुकसान हमारा ही होता, कसारा हमारा ही होता। इसमें मैं हदीस पूरी करूँगी इंशाअल्लाह। इसमें क्या है, अपने शौहर की नाफरमानी, नाशुक्री करती हो। मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को दीन और अक़ल में नक़्स रखने के बावजूद पुख्ता रहा। अ, मर्द की अक़ल को ले जाने वाल वाले ले जाने ले जाने वाला नहीं, या नहीं पाया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो इसमें कितनी बड़ी बात, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यानी मर्दों को भी तुम्हें इतने-इतने बड़े यानी ताकत वाले मर्द होते हैं, उनको भी तुम्हारी मोहब्बत, यानी तुम्हारी ये ऐसी हुआ थी कि वो इतने भी औरत की बात मानने के लिए मजबूर हाथी,
क्योंकि औरत को इतनी कुव्वत दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मर्दों को भी अल्लाह अपने बातों में लेना, उनको समझाना, उन्हें करना, ऐसा भी औरत कर सकती है। मर्द इतना ताकत है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो जिहाद यानी जो भी काम करने में उतना ताकत है, यानी जो भी घर की परवरिश करना सभी ये मर्द का हक है। फिर भी उतना ताकत वाले को उसके मुकाबले में औरत को इतना हक दिया कि अपने शौहर से अपना काम ले, यही है मतलब। जी। और क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा अकल और दीन में क्या नुकसान है, कि क्या नुकसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या औरत औरत की गवाही शरी मर्दों शराई मर्द की गवाही गवाही के बराबर नहीं, यानी एक मर्द की गवाही दो औरतों की गवाही होना चाहिए, एक औरत की गवाही से नहीं होता। जो भी हमें शरई उधर पर किसी का भी गवाही लेना चाहती हैं, इसमें एक मर्द गवाही दिए तो वो काफी हो सकता है। उसके मुकाबले में दो औरत गवाही देना चाहिए, एक औरत गवाही देने से काम नहीं होता, क्योंकि एक भूले तो भी एक उसे याद करने की कोशिश करती है। इसीलिए एक मर्द के मुकाबले में दो औरत होना, दो मर्दों के मुकाबले में यानी गवाही देने में मैं बोलती हूँ, ऐसे चार औरतों की गवाही देना, ऐसा यानी हर घर में मर्द को ये हुक्म दिया कि अल्लाह ताला औरत पर कवामीन कवामीन यानी सभी यानी उस पर हुक्म चलाने वाला कर कर अल्लाह ताला कवामीन बनाया मर्द को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के जीने में ऐसा ही हो इंशाअल्लाह। जी। और एक बात क्या पता चलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए ये जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए उन्हें जब औरत को हैज़ आ जाए तो ना ना नमाज़ पढ़ती ना नमाज़ पढ़ती है और ना रोज़ा रखती है। और उन्होंने कहा हाँ, हाँ, है, ये तो है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाए बस यही उनके दीन का नुकसान है। देखो जब आप जब मर्दों को तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको महीने के पूरे रोज़े मिल जाती हैं और नमाज़ भी पूरे साल के मिल जाती हैं। औरतों को ऐसा नहीं कि ये 2 मौके ऐसा है, इंशाअल्लाह जब वो हैज़ की हालत में ऐसा नमाज़ छूट जाती, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें क्या है, मर्दों को ऐसा पढ़ने में मर्दों को ज़्यादा सवाब हो गया। यानी औरतों को महीने में 7 दिन या 5 दिन ऐसा जाने से उन्हा का नुकसान होया। इसके बरकत से अल्लाह ताला और एक भी इसमें सिफ़ात रखा है, यानी जब भी माँ एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, वो जन्म में मुशक्कत उठाती है, वो दर्द बर्दाश्त करती है और जो भी उसमें ये होता है वो सहती है, वो बच्चे को दूध पिलाना यानी उसकी भलाई देखना, उससे इससे भी और अब मर्द का दर्जा तो ये पूरा साल भर है। इसमें देखे तो क्या अल्लाह ताला क्या फरमाया, माँ जन्न माँ माँ के कदमों तले जन्नत है। देखो कितना आला दर्जा दिया अल्लाह ताला। मर्द मर्द का तो दर्जा इतना है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना नाक़िस होने के बाद औरत, इतनी कमज़ोर होने के बाद औरत, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर एक की औलाद को ये दिया ये कहा कि तुम जन्नत ढूँढो अपनी माँ के कदमों तले। यानी माँ के कदमों तले का तो माँ खड़े तो उसके कदमों तले नहीं, जो माँ की पैरवी करते हैं, जो माँ की इताअत करते हैं, जो माँ की इस नाफ़रमानी नहीं करते हैं, माँ की फरमाबरदार होते हैं, इंशाअल्लाह उसका दिल से दुआ जब करती है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत के तमाम भलाइयाँ उसे अता करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात औरत की देखो औरत का क्या दीन में क्या है ऐसा हमें औरत को ज़ालिम कहा, यानी बुर्के में ढाँप को रखे, ऐसा बहुत से बातें बताती। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला औरत को सूरा निसा कर नाज़िल किया, कितना बड़ी ख़ुसूसियत यानी अल्हम्दुलिल्लाह औरतों का तारीफ़ किया। फिर भी माँ को जन्नत का ये बात अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फ़ख्र की बात है कि औरत को अल्हम्दुलिल्लाह कितना बड़ा दर्जा दिया अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और एक हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी मैं बताना चाहती हूँ। बाब है 14 हाइज़ा औरत का ईदगाह में शमूलियत करना, यानी हाइज़ा औरत ईदगाह में जा सकती है या नहीं जा सकती, हमें देखेंगे। हज़रत उम्म अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, दो दो शायजाद औरतें, पर्दे नशीन ख़वातीन और हाइज़ा औरत
हैजा औरतें सब ईदगाह के लिए बाहर निकले और हर मुसलमान की मजलिस खैर और दुआ में शामिल हो, मगर हैजा औरतें नमाज की जगह से अलग रहें। किसी ने पूछा, ये हैजा औरतें भी शिरक हों? तो हजरत उम्म अतिया रदियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, क्या औरत क्या हैज वाली औरत अरफात और फलां फलां मकामात पर हाजिर नहीं होती? इसी तरह उन्होंने जवाब दी। एक साहबिया है उम्मा अतिया कर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि जब भी यानी साल के 12 महीने में भी वो गोशा है, वो नहीं जा सकती बाहर या नहीं जाती बाहर, इतनी गोशा है, उसको भी इजाजत है कि वो ईदगाह में जाए, उसको भी जाना चाहिए, उसको भी ज़रूरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए वो भी ईदगाह में जाए। और दूसरी बात क्या, हैज़ वाली हो और निफास वाली हो और जो भी हो, वो नमाज़ नहीं पढ़ती, फिर भी ईदगाह में ज़रूर शामिल होना चाहिए। मर्दों के साथ ज़रूर शामिल होना चाहिए। मर्दों के साथ के तो मर्दों में मिल के बैठना नहीं, मर्दों की अलग और औरतों की अलग ऐसे जमात बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा औरतें भी मस्जिद को जाना चाहिए। क्योंकि अब पहली हदीस में हमें क्या मालूम हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का खुतबा होने के नमाज होने के बाद और खुतबा होने के बाद क्या फरमाए, औरतों के पास आए, उन पर वाज़ किए और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना कपड़ा दामन फैलाए, यानी अपना झोली के जैसा फैलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते गए, औरतें सदका करो, तुम्हें सदका खैरात करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि तुम्हें जहन्नम में बहुत ही तुम्हें, क्योंकि बहुत से लान तान करती, लान तान कहेगा थोड़ी सी बात पर उस पर लानत लानत करना, थोड़ी सी बात पर उसे ये करना। दूसरी बात यह कि अपने शोहर की नाशुक्री करते हो, अपने शोहर की नाशुक्री करते हो, इसीलिए औरतों को ज्यादा से ज्यादा ये करना कि अपने ज्यादा से ज्यादा सदका करना, ज़कात अदा करना। और जो भी उन्होंने क्या कर रही हैं साहबियात, देखो उनका जज्बा भी देखो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते गए ये बातें, अपने हाथों में के अंगूठियां और कंगने और बालियां, नाकों में के, कानों में के, जो भी है उनके हाथ में, उनके जिस्म पर, वो सभी निकाल निकाल कर बिलाल रदियल्लाहु अन्हा के झोली में भर दिए। क्योंकि जब ऐसा डरते थी, अब हमारे पास कितना भी हो, दिल नहीं के डालने के लिए, हमें ऐसा ही हमें हमारे लिए जन्नत तैयार की गई और जहन्नम से हमें बच जाएंगे कर हमें पूरी उम्मीद से रहते, ऐसा नहीं रहना। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा औरत सदका करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जहन्नम से बचाना चाहिए और जन्नत जन्नत की मुस्ताहक करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नम ऐसी चीज है कि बहुत खतरनाक है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें नेक बनकर तुम्हें जन्नत में जाओ, मैं जहन्नम में जाती। नऊज़ बिल्लाह, ऐसा कभी भी मजाक के तौर पर भी ऐसा नहीं बोलना कि जब फरिश्ते हर हमेशा फिरते रहते हैं, रहमत के फरिश्ते हो या अजाब के फरिश्ते हो, जब भी वो फिरते रहते हैं, वो आमीन करे तो उनकी बर्बादी हो आती। इसीलिए नहीं करना कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ऐसे नसीहत करे तुम भी ऐसे आओ, इंशाअल्लाह तुम दुआ करो कि हम भी आएंगे, हम भी पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, ऐसा करना चाहिए। और ऐसा नहीं करना कि तुम्हें ऐसा करो हमें ऐसा करेंगे। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह देखो हम कितनी हैजा हैजा के लिए क्या फर्ज है और निफास के लिए क्या फर्ज है, कितनी भी इतनी गोशा हो के वो कभी भी बाहर नहीं निकलती, उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जरूर ईद के खुतबे में शामिल होना है। ईद का खुतबा ऐसा है, यानी नमाज, अज़कार और सबसे बढ़कर तकबीर, पहले तकबीर है, नमाज है, दुआ है, बहुत यानी अहम की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये मालूम होता है कि हर औरत भी अपने नफ्स को पाक साफ करना चाहिए वो दिन जाकर, खुतबे के दिन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको ईदगाह को जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये नहीं समझना कि हमारे बड़े नहीं गई, हमें नहीं जाती, बस हमें घर में ही पढ़ लेती, ये नहीं। औरत घर में नमाज पढ़ना ये अफ़ज़ल है, अच्छा है, तरीका अच्छा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले औरत घर पे ही नमाज पढ़ना अच्छा है, मगर ईदगाह में जाने के लिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हदीस आप होना है तब ये देख लो इंशाअल्लाह, 218 यानी 218 हदीस है। इसमें ये मालूम हुआ कि ज़रूर इसमें शामिल होना और दुआ में और नमाज में और तकबीरात में शामिल होना औरत, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत औरत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला इतना खोल-खोल कर हमें बताने के बावजूद हमें नहीं इस पर अमल करती।
हमें ये समझते हैं कि हमें जो कुछ भी हमें करते हैं हम हमारे लिए काफ़ी है, हमें यही हमारे काफ़ी है क्योंकि हम बैठते हैं। ऐसा नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी नेकी भी अल्लाह ताला चाहे तो जाया कर सकता है और छोटी से छोटी नेकी भी अल्लाह चाहे तो उसे ज़्यादा कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना, इंशाअल्लाह हर हमेशा हमें अल्लाह अल्लाह की याद में रहना और अपने शौहरों की भी नाफ़रमानी ना करना, इंशाअल्लाह उनकी भी फर्माबरदार हो जाना और बीवी को भी शौहर को भी ये चाहिए कि वो अपनी बीवी को ऐसा हक़ीर ना देखे और ऐसा इसका ना ना देखे क्योंकि वो घर की मालकिन है, उसको भी उसका दर्जा देना चाहिए, उसको भी उसका हुक्म देना चाहिए। अब के लोग क्या करते हैं, ऐसा हक़ीर के जैसा देखते हैं, उसका हैसियत ही उसे नहीं देते हैं, इससे भी औरत का दिल टूट जाता है, ऐसा नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह औरत इतनी कमज़ोर है कि उसे उसका हक़ पूरा दो, उसका हक़ पूरा दो। जिसके घर में उसकी बीवी खुश है, वो घर जन्नत है। इसीलिए अपने घर को जन्नत बना लो और एक-दूसरे के ऐसे फर्माबरदार बन के रहो। एक-दूसरे से ऐसे दूर रहकर ऐसे न एक-दूसरे के बारे में ऐसे शक-व-शुबा कर और एक-दूसरे के बारे में गुस्से होकर ऐसे कर जहन्नम मत बनाओ अपने घर को। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये कहा कि जो घर में बीवी खुश है, वो जन्नत है। जो जिसके लिए बीवी यानी दीन की समझ वाली बीवी मिल जाती है, वो घर उसका घर जन्नत बना देती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमको भी उनमें से शामिल कर दे और उम्महात मोमिनीन हमारे सबके लिए नमूने हैं इंशाअल्लाह, साहबियात सभी हमारे लिए नमूने हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनमें से हमको शामिल कर दे, जो भी हमारे से हुई है कोताही हुई है या जो भी हमारे से गलती हुआ है, अल्लाह ताला हमसे दरगुज़र करे और हम भी उनसे माफ़ी माँगेंगे कि या रब हमसे जो भी कुछ गलती हुआ, आप माफ़ कर दे। ऐसा करने से उनका दिल कितना खुश हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। देखो ऐसा है यानी दीन इस्लाम ऐसा है। ये ये बात ये भी बताना चाहती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हें अपने शौहरों पर लान-तान करते हो। इतना सुन्ना, इतना पैसा, इतना ये देने के बावजूद वो अपने शौहरों को ऐसा तुम्हारी तरफ से खैर और भलाई नहीं देखी कर ये ऐसे बातें को मामूली बातों को ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले। आपके शौहरा अल्लाह उनको माफ़ करे, अल्लाह उनको सीधा राह दिखाए। यानी जो भी वो कहते हैं हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमें कुरान पढ़ते हैं, हमें मालूम है, अल्लाह रसूल मालूम है, फिर भी औरतों के माँ-बाप को इतना तंग करते हैं, उनसे इतना जाहिलपना से उनको ये करते हैं, यानी उनसे इतना जहेज़ वसूल करते हैं, उनसे इतना पैसा लूटते हैं, उतना से इतने गाड़ियाँ ये वो लेते हैं, अल्लाह ताला उनसे कितना नाराज़ होता। क्या वो शौहर शौहर कहलाता? नहीं, वो शौहर नहीं, वो न औरत के लिए बिक जाता है वो, ऐसा शौहर शौहर होता। अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हर एक को भी हिदायत दे के ऐसे शौहरों को अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि या रब हमें हमारे में भी एक ज़िम्मेदारी है। हम जिसके भी माएँ बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भी ज़िम्मेदारी बनता है कि हमें उन साहबा और साहबियात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमें अमल करें। इंशाअल्लाह जिसके भी लड़के हैं, उन्होंने सच्चे दिल से नियत करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहू को लाएँगे, हम बेटी बना कर रखेंगे, हमें सुन्नत की पैरवी करेंगे, हमें जहेज़ हो, जो भी हमें नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह हमें देकर हमें लाएँगे। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये दुआ अल्लाह ताला कबूल करे अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी जिसके घर में भी ऐसी औरत आने जाती है, ऐसी लड़की आने जाती है, खुशहाली से उसे दिल से लगा के रखे, सास हो या मर्द हो, उनसे दिल से लगा के रखे क्योंकि औरत इतनी कमज़ोर है, अपने अहल को छोड़कर आती है अपने पास। उसको ऐसा ना करो कि उसका दिल ना तोड़ो के वो ऐसे टूट कर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व शुक्र। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बी अजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ذُرِّय्यति रब्बना तक़ब्बल दुआ। रब्बी अग़फ़िरली वरहम अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन